सो अदर वन आपका डिमांड एंड सप्लाई। अब यहाँ से जो नेक्स्ट बैक टू बैक फोर्स टॉपिक हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। सो प्लीज ध्यान रखिएगा इनको और अच्छे से इनको आपका रिवाइज करें, बिकॉज टू सॉल्व क्वेश्चंस आपका यू विल बी रिक्वायरिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट अराउंड दीज थिंग, ठीक है। सो डिमांड शेड्यूल आपका बेसिकली व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द डिमांड कर्व, इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, आपका लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड सेम। सो दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड इज वेरी सिंपल कि लेट्स से इफ दिस इज आपका प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। सो इफ वी हैव प्राइस लेवल एट दिस, ठीक है, सो वील हैव आपका मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, द क्वांटिटी डिमांडेड इज दिस। if we'll have price, as we'll increase the price, so the quantity demanded will be at least आपका, ठीक है। that means law of demand, as the price of a goods or services increase, the quantity demanded decrease और vice versa, ठीक है। सिंपल टर्म्स में आपका अगर किसी चीज की प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उसके लिए जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा, ठीक है, सॉरी डिक्रीज होगा। और अगर प्राइसेस घट रहे हैं, ठीक है, सो लेट्स से इफ द प्राइस वाज 5, द क्वांटिटी डिमांडेड वाज 100, and when the price went to 50, the quantity demanded was suppose that 5 आपका, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से रिलेशंस आपको जो देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। A demand schedule is a table that show the quantity of a particular goods or services that consumers are willing to buy at various prices during the specific period. Now there is one thing around the law of demand and law of supply, ठीक है। Law of demand is generally इट इज एट कंज्यूमर साइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमांड है वो किससे डिसाइड हो रहा है आपका, या किसके अराउंड वर्क कर रहा है आपका, कंज्यूमर्स के, ठीक है। कंज्यूमर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं आपका एट डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस, ठीक है। इफ यू कम टू द लॉ ऑफ सप्लाई, इट इज अ पॉइंट आपका, ठीक है, कि इट इज एट सप्लायर साइड, ठीक है, कि आई वांट टू सेल माय प्रोडक्ट एट, अगर मैं इस लेवल पे बेचता हूं इस प्राइस पे या अदर डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस एंड ऑल, ठीक है। तो फॉर फैक्टर अफेक्टिंग लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके अराउंड आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है, ठीक है। इट इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस of a product and the quantity demanded as we represent in this particular one. I hope this is clear to everyone, ठीक है। So as we have one कोई आपका चार्ट ऑल्सो, ठीक है। तो when the price of A, this is a price label, ठीक है, A आपका it was 500 rupees per box, so the demand quantity demanded was this, ठीक है। when the price was this, so quantity demanded was around 9 आपका, ठीक है, कुछ इस लेवल पे आपका था। when it was आपका 100, price came down to 100, so there is a quantity demanded is how much आपका 20, ठीक है। so this is the relationship, तो it is something like this आपका, जो इस फ्लो को आपका फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। So now there is the important part of this one. This I hope everybody knows. अगर नहीं भी है तो इतना ही इसका basic concept है, ठीक है। Now the question will be around आपका factor determining law of demands or affecting law of demands, और आपका जैसे what are the major forces which generally shift this law of demands आपका in rightwards movements and all, ठीक है। तो इस तरीके से आपको questions, I'll come to this, ठीक है, यहाँ पे। So this part is important, please see. Demand curve is a fundamental concept in economics that illustrate the relationship between price of a goods and the quantity demanded. So the slope and position of demand curve are influenced by several factors और forces, ठीक है। क्या क्या है ये forces? Price of goods आपका, ठीक है। So price of goods means we already discussed this particular one. This is a core fundamental आपका, ठीक है। So if there will be high prices, there will be a low quantity demanded. If there will be low prices, demand will be increase आपका, ठीक है, सिंपल सा, और vice versa, ठीक है। Income of consumers, ठीक है। So now what are the reason why this slope is moving to this particular direction, ठीक है। So if the income level of the consumers will increase, ठीक है, अगर हमारी इनकम बढ़ेगी, obviously we will spend more, ठीक है। We will spend more means we will consume more, so that will create a demand in the economy, ठीक है। Opposite side आपका, अब this can have a opposite point also. If the income is decreasing, ठीक है, अगर इकोनॉमी के अंदर आपका लोगों की इनकम कम होगी, ऑब्वियसली आपका देयर विल बी अ रिवर्स मूवमेंट इन दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स आपका, ठीक है, रिलेटेड गुड्स आपका, ठीक है। सो नाउ रिलेटेड गुड्स कैन बी टू, वन इज
सब्स्टिट्यूट गुड्स, अनदर वन इज आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स आपका, सब्स्टिट्यूट इज लाइक we have tea and coffee, ठीक है, tea and coffee. Let's say we are studying this particular one for coffee. So earlier coffee prices was 15 and आपका tea prices let's say are at 10 rupees, ठीक है। Now tea sellers they increase their prices from 10 to 12. So it will benefit to coffee sellers आपका, ठीक है। So what now some people they'll spend 3 more rupees and they'll prefer coffee आपका over tea. So that is the kind of things, ठीक है। In case of complementary goods आपका, if it is around the complementary goods like bread and milk आपका, और bread and butter और cars and petrol, ठीक है। So अब यहाँ पे क्या होगा, if the prices of complementary goods will increase, demand for this particular one will decrease, ठीक है। और vice versa, if the prices of complementary goods will decrease, अगर पेट्रोल के प्राइसेस कम हो जाते हैं, obviously people will buy more cars, right? So this is the something link आपका जो यहां से आपका बनेगा, ठीक है दोस्तों। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है, this is again very important. If your product is trending, so people will prefer that particular one more. Number of buyers, if number of buyers will increase, obviously there will be more demands, ठीक है। जैसे इंडियन इकोनॉमी को बहुत बड़ा मार्केट माना जाता है, रीजन बीइंग वी हैव बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमारे पास है, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन ऑल्सो, लेट्स से गवर्नमेंट डिक्रीज टैक्सेस, ठीक है। व्हाट गवर्नमेंट डिड इन यूनियन बजट 2025-26, दे सेड कि लाइक आपका 12 लाख प्लस स्टैंडर्ड डिडक्शन, आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ पीपल विल हैव मोर मनी इन देयर पॉकेट, so they'll make more demands. So what government want to do, they generally want to increase the overall consumption level in the economy, so we can have some better numbers with our GDP and all. So that is the kind of things. अगर वो taxes बढ़ा देंगे, obviously it will have negative impact, ठीक है। Seasonal factors आपका, seasonal factors is like in case of summers we have demand for the cold drinks and all. In case of winters there will be more demand for tea and coffee, so accordingly this particular thing will work आपका, ठीक है। This is clear आपका, ठीक है। ये आपका इतना समझ में आ गया सबको, ठीक है। एनी डाउट ऑन दिस पर्टिकुलर वन, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फॉर द करंट ईयर इट इज 60% आपका, ठीक है। विजया इट इज आपका 60% ओनली, ठीक है। देन बट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 25-26 which started from 1st April onwards, it is आपका 75%. They also came, it is 75% or something, ठीक है। हाँ, the exact आपका वो, बट फॉर 25 एक बार उसको ना देख लीजिएगा, आई एम जस्ट गेटिंग कंफ्यूज विद दैट वन। आई हैव डन दैट पर्टिकुलर थ्रू द यूनिट वाइज एमसीक्यूज द चार्ट ऑल्सो, ठीक है। सो प्लीज क्रॉस चेक एंड विजय जस्ट मेंशन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन टेलीग्राम, आई विल क्रॉस चेक एंड आई विल लेट यू नो, ठीक है। इफ आई डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। सो कॉजेज, अब देखो योर क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा एंड दैट क्वेश्चन विल बी फॉर श्योर आपका 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स क्वेश्चन। व्हाट आर द रीजन और कॉजेज ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है। सो आपका इंक्रीज इन इनकम एंड वी हैव इंक्रीज इन पॉपुलेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, दीज वी हैव डिस्कस। तो एक स्टेटमेंट आपको वहां पे मिलेगा जो आपको एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइसेस इंक्रीज, इट हैपन विद दी आपका जैसे टोमेटो प्राइसेस के साथ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ स्टॉक होल्डिंग एंड एवरीबॉडी नोज कि फॉर नेक्स्ट 1 मंथ देयर विल बी नो सप्लाई। अगर मार्केट में सप्लाई नहीं होगी तो व्हाट वी विल डू, वी विल स्टोर मोर, अगर वो करेंगे तो प्रॉब्लम आपका होगा, ठीक है। डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपका, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस कम हो रहे हैं, मींस पेट्रोल प्राइसेस आर कमिंग डाउन और आपका बटर प्राइसेस आर कमिंग डाउन, सो विल परचेज मोर कार्स और मोर ब्रेड्स, ठीक है। इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स आपका, ठीक है। अगर कॉफी के प्राइसेस 15 से 20 हो गए तो यहाँ पे हमने कॉफी को पढ़ा था, कॉफी को हम एनालाइज कर रहे थे, तो चाय के प्राइसेस 10 से 12 हो गए, सो देयर आर सम पीपल हु विल शिफ्ट फ्रॉम चाय टू कॉफी आपका। तो इस तरीके से जो आपका रिलेशन होगा। इज दिस क्लियर गाइज? एवरीवन प्लीज डू लेट मी नो in the comment section. very important one, 2 marks question on your screen, 2 marks के question आपके स्क्रीन पे हैं, प्लीज देखिए आपका। so you have to go through this particular paper, I am done with this paper, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। so some shift in demand and expectations of law of demands, so these are the one statements which we have discussed with our 4 statements and all, so please do take care around this. Now it comes to the law of supply, ठीक है। law of supply, the other part, so a supply schedule which is generally supply is done by the manufacturer,
सो इट इज जैसे आपका डिमांड साइड इज फ्रॉम दैट इज जनरेटेड फ्रॉम द कस्टमर्स, ठीक है, consumers. So it is generated, supply is done by the manufacturer. So you have to study with the mindset of a आपका manufacturer, ठीक है. If I want to sell something, I want to sell it at max prices, ठीक है. मतलब अगर आप एज अ सेलर मार्केट में उतरोगे तो आप what you will do, आपकी मेरा ये जो प्रोडक्ट है ये आपका हाईएस्ट प्राइस पे बिके, दैट इज आवर इंटेंशन, ठीक है. सो वी वांट टू सेल दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एट द मैक्स प्राइस. So a supply schedule is a table that show the quantity of goods or service that producers are willing to sell at various prices during a specific period. As the price of goods or services increase, the quantity supplied increase, ठीक है, और vice versa, ठीक है. तो how you'll frame the chart of this particular one, something like this. तो इसका जो आपका शेड्यूल है that will मूव टुवर्ड दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है. तो अपवर्ड्स आपका जाएगा, ठीक है. जैसे उसका आपका डाउनवर्ड्स आया था, राइट डाउनवर्ड्स आपका, इसका आपका अपवर्ड्स, ठीक है. सो व्हाट वी आर जनरली ट्राइंग टू डू आपका कि अगर प्राइसेस, लेट्स से दिस इज द प्राइस आपका, इफ दिस इज द प्राइस वी वांट टू सप्लाई दिस, इफ दिस इज द प्राइस वी वांट टू सप्लाई दिस, ठीक है. सो कुछ इस तरीके से जो इसके अजम्पशंस आपके बन के चलेंगे, ठीक है. एंड हाउ दिस आपका जो शेड्यूल है या जो आपका डिमांड सप्लाई कर्व है, this is going to work in this particular direction. As we have same example, if we are selling a product at आपका 100 rupees, ठीक है, so we are willing to sell आपका 8 boxes, ठीक है. हम यहाँ पे 8 boxes को sell करना चाह रहे हैं, ठीक है. At 100 rupees we want to sell आपका 8 boxes, ठीक है. Let's say somewhere here, ठीक है, यहाँ पे हम लोग करना चाह रहे हैं. If it is like 500, ठीक है, so 500 we want to sell max आपका, ठीक है. हम कितना बेचना चाह रहे हैं यहाँ पे आपका 18, ठीक है. सो विच जनरली कम्स अराउंड दिस पर्टिकुलर वन. सो लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड विच इज आपका कंज्यूमर साइड से, एंड लॉ ऑफ सप्लाई दैट इज फ्रॉम योर आपका मैन्युफैक्चरर साइड और द सेलर साइड, राइट. सो जितना ज्यादा प्राइस मिलेगा उतना ज्यादा क्वांटिटी सेल करना चाहिए, जितना कम प्राइस होगा उतना कम हम क्वांटिटी बेचना चाहेंगे. लॉ ऑफ डिमांड इज लाइक कस्टमर्स दे आर प्राइस सेंसिटिव, उस तरीके से लिंक होगा कि वी वांट टू बाय मोर एट लोअर प्राइसेस. आप प्राइसेस हाई रखोगे कम खरीदेंगे, ज्यादा रखोगे आपका कम रखोगे ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा रखोगे कम खरीदेंगे. तो इनवर्स रिलेशनशिप आपका, ठीक है. सो द सप्लाई कर्व इन इकोनॉमिक्स इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड द क्वांटिटी सप्लाइड, वेरियस फैक्टर्स. अब यहाँ पे क्या क्या होंगे, जैसे प्राइस ऑफ गुड्स आपका, ठीक है. तो इफ प्राइस ऑफ गुड्स इज लाइक इफ people are offering at higher price, so obviously we will sell more, ठीक है. cost of production, अब देखो cost of production, if cost of production will come down, ठीक है, जैसे you can have some sort of application based question also, हाँ, ठीक है. let's say if we are selling this market, ठीक है, now we adopted one new technology and the cost came down by let's say 10 rupees per market. तो हम क्या कर सकते हैं आपका, now your profit margin will increase, तो हमारा कहीं ना कहीं we'll sell more at the same prices also, ठीक है. तो इस तरीके से like let's say 10 rupees हमने प्रोडक्ट का prices will decrease by 7 rupees and all, still will have a margin of 3 rupees which is additional margin as अगर हम previous उससे उसको आपका compare कर रहे होते हैं, ठीक है. prices of related goods आपका that also matter, ठीक है. number of sellers in the market, government policies and natural event and conditions. Sometimes like if there is less supply or that if there is some natural calamities and all, okay, so we suddenly increase the prices because we know there is no competitor or there is no supply in that particular market, so they become opportunists in that particular situation as we face in the recent event आपका, ठीक है. so there is आपका जम्मू एंड कश्मीर, जैसे आपका वहां पे वो अटैक हुआ तो पीपल दैट एयरलाइन कंपनीज दे सडनली इंक्रीज देयर प्राइसेस, ठीक है. जो टिकट आपका 5,000 7,000 का था, it went around आपका 14,000 और 18,000. so that was a live example आपका. कई बार ऐसी जो कैलेमिटी, आपदा का अवसर, that is generally known as in हिंदी, ठीक है, तो वो जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला. now the next point, now you know the law of demand, law of supply, these factors जैसे हमने वहां पे डिस्कस किए थे, सप्लायर साइड से आपको इनको अंडरस्टैंड हमने करना है. अब now the equilibrium, how we decide the market prices, ठीक है. So we generally apply law of demand and law of supply, ठीक है. So this is your आपका, this is your demand curve and this is your supply curve, ठीक है. So this is the point, मतलब let's say we found this as a equilibrium, ठीक है. ये हमारा एक ऐसा पॉइंट था जहां पे लॉ ऑफ डिमांड आपका लॉ ऑफ सप्लाई को ब्रेक कर रहा है, ठीक है.
सो नाउ दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट व्हाट डज इट मीन कि दिस इज द पॉइंट जहां पे बायर वांट टू बाय एट this much of quantity at this price and seller want to sell this much of quantity at this particular price. So that generally define the market price आपका, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार क्या होगा, जैसे sometime we'll have some sort of surplus or sometime we'll have some sort of shortage and that there will be a correction in the market. जो प्राइसिंग आपका डिसाइड होगा दैट इज आपका, लेट्स से आपका बायर बेचना चाह रहा है, खरीदना चाह रहा है 10 रुपीज, सेलर वांट टू सेल एट 12 रुपीज, दैट मींस देयर इज अ सरप्लस इन शॉर्टेज आपका, ठीक है। इवेंचुअली दे विल कम डाउन, व्हेन दिस विल कम डाउन एंड दिस विल इंक्रीज एंड दे विल रीच टू अ पॉइंट, जैसे बायर वांट टू बाय एट 8 रुपीज and seller want to sell at 12 rupees, so it is a surplus of 2, it is a deficit of 2 आपका, ठीक है। So eventually they are not moving, they'll come to a defined price कि हाँ भैया this is the point where we want to sell and customer is agreeing कि I want to buy at this particular price. That point is generally known as equilibrium. उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, आपका market equilibrium के नाम से। So equilibrium is in the context of supply and demand refer to a state where the quantity of goods or services that buyers are willing and able to purchase equal the quantity that suppliers are willing and able to sell आपका, ठीक है। That point is generally known as market equilibrium, ठीक है, equilibrium. So at this point the market is considered to be balanced and there is no tendency for the prices to change in this particular one, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। So equilibrium and quantity, ठीक है, equilibrium price and quantity, price आपका the price at which quantity demanded equal to the quantity supplied, quantity is both supplied and demanded at the equilibrium and that point is generally known as market equilibrium, ठीक है। shift rightwards, ठीक है, it is something आपका किसके अराउंड है ये, shift rightwards and shift leftward. There are some question ना, कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन वो देगा कि like what are the reason behind the movement in the shift, what are the major reasons behind the there is a shift in rightwards in the demand curve or in the supply curves, the rightwards or leftwards, ठीक है। So जैसे आपका this is something around demand, what I can interpret, factor that make production more, okay it is around supply only, ठीक है। So factor that make production more efficient or less costly such as technological advancement usually lead to an increase in supply at every price level. This cause the supply curve to shift to the right, indicating that producers are willing to supply more quantity at a same level, ठीक है। So what are the reason behind this particular shift आपका, why this is moving to the rightwards, ठीक है, और ये और कैसे rightward जा सकता है, how supplier can increase more supply in the market, so these are the reasons, ठीक है। एंड आपका लेफ्टवर्ड मूवमेंट्स के रीजन क्या हो सकते हैं, ठीक है, इट विल कम दिस साइड, ठीक है। फैक्टर दैट मेक प्रोडक्शन मोर डिफिकल्ट और कॉस्टली आपका, जैसे गवर्नमेंट रेगुलेशन और टैक्सेस typically reduce the quantity supplied at each price level. This caused the supply curve to shift to left, reflecting a decrease in supply from for the same prices and all, ठीक है। So leftward, rightwards और ऐसे बहुत सारे एरियाज जो आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। तो बेसिकली डिमांड इन सप्लाई आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन डाउन साइड, ठीक है, वो आपका लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ सप्लाई, या ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज आपका रीजन बिहाइंड जो फैक्टर्स हमने समझे थे ना आपका, या जैसे यहाँ पे ना इफेक्ट्स आपके, जैसे इनकम इफेक्ट्स है, ठीक है। सो आपका इफ द इनकम इफेक्ट इज जो हमने अभी डिस्कस किए थे मेजर फैक्टर्स, और वो कि अगर if the consumer income will increase they'll make more demand, ठीक है। So that will there will be a आपका impact if substitute आपका goods हमने बात किया, if substitute goods prices will go up so people will come to your product। आपका जैसे हमने बात किया था complementary goods का, if the prices of complementary goods will come down so people will make more demands for your product, तो वो आपका, तो ये रिलेशन को ना आपको बहुत अच्छे से समझना है। आई ट्राइड कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाए, आइडिया आपका लग जाए, ठीक है। बट आई हाईली रिकमेंड कि प्लीज डू रिवाइज ऑल दीज 4 यूनिट्स आपका बैक टू बैक, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज डिमांड कर्व, ठीक है। सो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट द डिमांड it is customer centric, and whenever you talk about the supply it is
मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर सेंट्रिक, राइट? सो डिमांड कर्व को आपको एज अ कंज्यूमर आपका समझना है, ठीक है, एंड सप्लाई कर्व को आपका एज अ सप्लायर और एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ बिजनेस एंटरप्राइज आपको उसको कहीं ना कहीं रिलेशंस के साथ लेके चलना है, ठीक है। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द डिमांड कर्व, इट इज समथिंग आपका कि like at what price customer or consumers they'll have the maximum one, ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये रहेगा, ठीक है। so if you talk like usually it is the curve is something like this, ठीक है, so this is price and this side is price आपका, ठीक है, and this is quantity demanded, right? so if your price is here, अगर आपका प्राइस इस लेवल पे है, so we'll have less demand, ठीक है, and if your price is here, so you will have more quantity demanded for this particular one, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका रिप्रेजेंट करता है, मींस relationship between price and quantity demanded, right? so if we have high prices, let's say it is 100, sorry, so let's say it is 100 and it is supposed at 10, ठीक है। तो अब अगर prices, if we are selling our product at high at आपका supposed at 100, so suppose that quantity demanded is 10, and if we are selling this particular price at 10, क्वांटिटी डिमांडेड इज 100, सो कुछ इस तरीके से रिलेशनशिप आपका, ठीक है। तो अगर कस्टमर्स को सस्ते प्राइसेस पे चीजें मिलेंगी, दे विल परचेज मोर, ठीक है। The other things remaining constant, other things we will talk about this particular one, what are the key areas who generally affect the this law of demand, और कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड आपका काम नहीं करता। कई बार ऐसा भी होता है कि लाइक if prices increase, people the quantity demanded is also increase, ठीक है। तो जैसे आपके बेबलिन गुड्स हैं, ठीक है, जो लग्जरी आपके आइटम होते हैं, या नेसेसरी आपका जैसे सॉल्ट है, नमक आपका, ठीक है, वो उनके ऊपर आपका ये काम नहीं करेगा, ठीक है। So a demand schedule means a demand curve is a table that shows the quantity of a particular goods or services that consumer are willing to buy at various prices during a specific period. So this is the definition, ठीक है, कि if your prices are 100, so quantity demanded is 10. If your prices are 10, your quantity demanded is 100. So this is the meaning of this. It illustrates the relationship between price of product and quantity demanded, ठीक है। So, the law of demand basically says if the price of good or services increase, the quantity demanded decrease or vice versa, ठीक है। तो अगर आपका prices बढ़ेंगे, ठीक है, if prices will be at higher side, quantity demanded will be at lower side, ठीक है, और if your prices for the goods and services decrease, your quantity demanded will increase. So this is the basic relation, or this is generally known as law of demand, ठीक है। So we will understand this particular one. This is given in your book itself, ठीक है। So you can see product A, let's say this is some commodities, ठीक है। So let's say like let's say marker, ठीक है, तो marker का example ले लेते हैं, ठीक है। So marker के केस में आपका if situation A where prices are 500, so quantity demanded is 9, ठीक है, then it become 400, quantity demanded 10, 300, quantity demanded 12, and it become 100, quantity demanded is 20, ठीक है। सो जैसे जैसे आपके प्राइसेस कम हो रहे हैं, तो डिमांड आपका क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और वैसे वर्सा इफ प्राइसेस विल इंक्रीज, अगर आप इसको नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हो, ठीक है, सो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, द क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज, सो दे हैव इनवर्स रिलेशन, ठीक है। सो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड दे हैव इनवर्स रिलेशन, ठीक है। सो इफ price will increase, quantity demanded will decrease. If price will decrease, quantity demanded will increase. So this is very simple, ठीक है, हमारे रेगुलर लाइफ में भी आपका ये चलता है, ठीक है। सो नाउ दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि आगे के बहुत सारे क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। So the demand curve is a fundamental concept in economics that illustrate the relationship between price of goods and quantity demanded, that we have understood with the help of examples also. The slope and opposition of demand curve influenced by several factors, ठीक है, बहुत सारे factors जो उसको influence करते हैं, these are the this one, ठीक है, and this is very very important one, ठीक है। So now we will make our understanding. First आपका price of good, ठीक है, so price of good we have understood this particular one, ठीक है। So if price of good will increase, ठीक है, if price will increase, so quantity demanded will decrease, ठीक है, so quantity demanded will decrease,
और वाइस वर्सा। इफ प्राइस विल डिक्रीज, इफ प्राइस विल डिक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज। तो पहला आपका ये सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। अब अगर हम इसको लॉ ऑफ डिमांड के लेफ्टवर्ड स्लोप के हिसाब से समझते हैं, ठीक है, तो दिस इज द आपका चार्ट, ठीक है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन आपका प्राइस, ठीक है, दिस इज प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर हम इस डायरेक्शन में लेके चलते हैं, ठीक है, सो इट इज आपका इनकम ऑफ कंज्यूमर। सो इफ इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज, quantity demanded will also increase, ठीक है। So demand will, if income increase, demand for goods will also increase, ठीक है। तो let's say आप जैसे as a banker, let's say you are working in a bank as a PO position, ठीक है। So अब कल के डेट में आफ्टर क्वालिफाइंग JIB एग्जामिनेशन देयर विल बी एन इंक्रीमेंट, ठीक है। कुछ लोग आपका जो CIB पे होंगे, ठीक है। सो एट CIB इफ यू आर एट ब्रांच मैनेजर लेवल, सो मंथली इंक्रीमेंट विल बी अराउंड 10,000 इन अप्रॉक्स, ठीक है। एज अ PO आपका जो सिंगल इंक्रीमेंट होगा आफ्टर क्लियरिंग JIB एग्जामिनेशन, इट विल बेनिफिट यू अराउंड 5,000, ठीक है। तो अब ये 5,000 रुपए आपको एडिशनल मिलेगा। सो व्हाट यू विल डू विद दैट पर्टिकुलर मनी, ठीक है। 5,000 रुपीज पर मंथ आपको एडिशनल मिल रहा है। सो यू विल इंक्रीज योर स्पेंडिंग, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं क्या करेंगे, you'll make more demand in the market, you'll create more demand in the market, ठीक है। तो सिंपल सा होता है ना, जब इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ती है, आपका वो फिजिकल पॉलिसी के थ्रू हो या मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, लाइक एज RBI डिक्रीज द रेपो रेट लास्ट मंथ by 25 basis point, it is definitely going to increase money supply in the market. So अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी, so people will have more demand, ठीक है। So more demand आपका that will आपका कहीं ना कहीं इस तरीके से आपका लीड करेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड आपका, ठीक है। सो नाउ रिलेटेड गुड्स आपका, ठीक है, इट कैन बी आपका जैसे दो तरीके से हो सकते हैं। एक हो सकता है सब्स्टिट्यूट, एक हो सकता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स आपका, ठीक है, द रिप्लेसमेंट गुड्स आपका, ठीक है। जैसे आपका टी एंड कॉफी, ठीक है। सो इफ प्राइसेस फॉर, लेट्स से वी आर स्टडिंग दिस डिमांड कर्व फॉर टी, if prices for coffee will increase, तो more and more people will shift toward the tea, ठीक है। जो कॉफी पी रहे थे कुछ लोग आपका, वो भी चाय में आ जाएंगे, ठीक है। सो दैट विल, और दूसरा आपका अगर उसको कम होगा तो ऑब्वियसली इट विल हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन योर प्रोडक्ट, ठीक है। एंड दूसरा आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लाइक जैसे आपका पेट्रोलियम प्राइस, पेट्रोल एंड कार है, ठीक है। इनका रिलेशन आपका, ठीक है। इफ प्राइसेस फॉर पेट्रोल विल इंक्रीज, डिमांड फॉर योर कार विल डिक्रीज, ठीक है। क्योंकि अगर पेट्रोल महंगा होगा तो अफोर्डेबिलिटी कम हो जाएगी लोगों की कार के टुवर्ड्स आपका, ठीक है। दैट इज द वन, ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आपका, ठीक है। अगर जैसे कोई भी चीज जितना ज्यादा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में होगा या ट्रेंडिंग में होगा, इट विल हैव मोर डिमांड्स, ठीक है। नंबर ऑफ बायर्स, जितने ज्यादा नंबर ऑफ बायर्स होंगे, ठीक है, मतलब पॉपुलेशन एक फैक्टर हो जाता है, ठीक है। तो ज्यादा पॉपुलेशन, ज्यादा बायर्स होंगे, इट विल लीड टू द डिमांड इटसेल्फ, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड regulations, ठीक है। Sometime government also come up with some sort of restrictions or they support some areas, ठीक है, जहाँ पे they provide some sort of subsidies to the manufacturer and all, ठीक है। That will, एंड सीजनल गुड्स आपका, ठीक है। जैसे विंटर्स कुछ समय पहले देर वॉज अ डिमांड फॉर टी, चाय की डिमांड बहुत ज्यादा थी या कॉफी की डिमांड बहुत ज्यादा थी। नाउ इट इज समर्स, सो समर्स में व्हाट विल हैपन, ठीक है, कि आपका जो चाय कॉफी की डिमांड है दैट विल शिफ्ट टू कोल्ड ड्रिंक्स या अदर टाइप ऑफ ड्रिंक्स आपका, ठीक है। तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका इनके लिए वो डिमांड क्रिएट करेगी, राइट। सो दीज आर सम मेजर फैक्टर्स हु जनरली अफेक्ट आर डिमांड कर्व, ठीक है। हमारे डिमांड कर्व के ऊपर इनका आपका इंपैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो व्हाई इट इज मूव राइटवर्ड, ठीक है। सो राइटवर्ड मतलब दिस इज द राइटवर्ड मूवमेंट आपका, ठीक है। सो दिस इज योर लेफ्ट एंड दिस इज योर राइट, ठीक है। तो दिस इज योर डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व राइटवर्ड की तरफ कब मूव करेगा, व्हेन वी विल हैव मोर एंड मोर डिमांड फॉर अ गुड्स और फॉर अ सर्विस, ठीक है। तो दीज आर द रीजन, ठीक है। इनके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन इनकम, सो व्हेन कंज्यूमर्स इनकम राइज, they can afford to buy more items, ठीक है, और more, ठीक है। Increase in population, more buyer lead to more demands. So as the price per apple decrease, the quantity supplied, ठीक है। Taste and preferences, if a good become more popular or fashionable, demand may increase for that particular one, ठीक है।
एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइसेस इंक्रीज, ठीक है, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू स्पेक्यूलेशंस, ठीक है, जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर आपका होता है, दैट इज ड्रिवन बाय दी स्पेक्यूलेशन एलिमेंट्स आल्सो, राइट? सो इफ मैक्सिमम इन्वेस्टर दे हैव same perception about the company, कि the company share prices will go up in the near future, so they'll buy that particular one. अगर हर कोई buy करना start करेगा, so what will happen? The prices, the demand for that particular price will increase. If expected prices to rise in the future, they might buy more, ठीक है, जैसे होता है ना अनियन के केस में, ठीक है, या टोमेटोज के केस में पिछले कुछ समय से, जहां पे स्टॉक होल्डिंग इज वन फीचर, ठीक है, तो जैसे अगर लग रहा है कि यार अगले कुछ समय तक सप्लाई ब्लॉक होने वाली है, सो वी हैव लिमिटेड आइटम इन द मार्केट, ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, विल स्टार्ट स्टोरिंग दोज पर्टिकुलर कमोडिटीज, तो देयर विल बी अ सडन राइज इन द डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है। डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपका, ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ अ गुड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मीन्स for car petrol diesel is complementary goods, so if prices of petrol will decrease, people will buy more and more car, ठीक है, if prices of diesel or CNG will decrease, people will buy more and more cars, ठीक है, so that is the one. If the prices of a goods that use together with the product decrease, demand may increase, ठीक है, increase in prices of substitute goods, replacement, ठीक है, as I gave you an example of tea and coffee, कॉफी के प्राइसेस इतने ज्यादा हो गए, सो नाउ सम कॉफी पीपल दे शिफ्टेड टू टी इटसेल्फ, ठीक है, इस तरीके के रिलेशन, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स पर इंक्रीज, कंज्यूमर में बाय मोर ऑफ दिस प्रोडक्ट इंस्टेड, ठीक है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ बेसिक समरी अराउंड योर लॉ ऑफ डिमांड. नाउ इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस. So with the help of number of question, I have added maximum questions, ठीक है, तो बढ़िया से, if it required we will have 2 session, but I want to discuss this particular unit in detail, so जिससे आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से इनको आपका समझ पाएं, ठीक है. 2 marks question are expected from law of demand and law of supply, और अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया, I'll make sure कि you will be able to solve those particular one, ठीक है. So first question, Ramesh owned a grocery store in a small town. He noticed that demand for apple in his store fluctuate based on the price changes. When he sell apples at 500 rupees per box, he managed to sell 9 boxes. Then 400 per box, 10 boxes. Then 300 per box. So there was 12. ठीक है? Observing this trend, Ramesh realized that he reduced the price. The quantity of apples sold increases. So कौन सा law है आपका? This is very simple question. So it is a law of demand. ठीक है? So what Ramesh is facing in this particular situation in his store itself, that is law of demand. ठीक है? तो इस पे क्या हो रहा है आपका? Law of demand की कृपा हो रही है. ठीक है? तो अगर if prices decrease, ठीक है, if prices decrease, आपका अगर prices कम होंगे तो योर आपका क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज. ठीक है, तो जैसे हमारे पास अगर आप इसको चार्ट फॉर्म में लेके चलते हैं, दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी. ठीक है, सो अर्लियर प्राइसेस वाज हाउ मच? 500. ठीक है, सो 500, देन आपका 400, देन आपका 300. ठीक है, सो what was the quantity demanded at this 500? It was 9 boxes. ठीक है, let's say it is 9, and then 12, this is 12, and this is then eventually, so 10 and 12. ठीक है, this is 10 and this is 12. ठीक है, so what Ramesh is experiencing in this case, when he was selling one box at 500, so this was the like he was able to sell 9 quantity, 9 boxes. ठीक है, then he did 400, so it become 10. Then he did आपका 300, so it is this. So this is the one. ठीक है, so this is the law of demand he is experiencing in his store itself. Very basic question. I hope like everyone understood this particular thing. Yeah. So what is law of demand? The relationship between price and quantity. Yeah. If prices will go up, quantity demanded will come down. If prices will go down, quantity demanded will increase. They have inverse relation. Okay. Next one. This type of question you will expect, or you can expect in your examination. And mostly what I observe from interest, theories of interest and demand, they most of the time ask 2 marks question. ठीक है, मतलब 2 marks के जो क्वेश्चन होंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे,
एंड दैट इज फॉर 2 मार्क्स आपका, ठीक है। मतलब क्वेश्चन बहुत आसान है इफ यू हैव अंडरस्टूड दैट फंडामेंटल्स ऑफ व्हाट वी हैव टॉक इन आवर लास्ट 15 मिनट्स, तो ये आपको आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉ ऑफ डिमांड आर करेक्ट? when the prices of commodity rise, ठीक है, other factor remaining constant, the quantity demanded will decrease, 100% true, तो पहला स्टेटमेंट सही है। the substitution effect, substitute goods, ठीक है, substitute means for tea it was coffee, ठीक है, occurs when consumer replace a costlier good with a cheaper alternates, ठीक है, so that is the one, ठीक है, so this is also true, ठीक है। so when customer like आपका क्या कह रहा है? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट अकर्स व्हेन कंज्यूमर रिप्लेस कॉस्टलियर गुड, ठीक है, विद द चीपर वन, ठीक है। जैसे आपका लेट्स से टी एंड कॉफी, अगर लेट्स से वी हैव 10 people who preferring tea at 10 rupees, ठीक है, and there are 10 people who preferring coffee at 15 rupees, ठीक है। now what happened, coffee prices came down to 12 rupees, so 2 people from here आपका 10 to 2 people आपका दे जनरली मूव टू कॉफी आपका, ठीक है, इस तरीके से जो आपके रहेंगे, ठीक है। इनकम इफेक्ट इंप्लाइज दैट द प्राइसेस ऑफ गुड्स राइज, कंज्यूमर फील वेल्थियर एंड इंक्रीज द कंजम्पशन, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही लग रहा है? नहीं, ठीक है। क्या होता है जब आपका प्राइसेस बढ़ते हैं तो हम अपने आप को पुअरर फील करते हैं एट सेम इनकम लेवल, ठीक है। सो लेट्स से सम आपका जैसे आप नॉर्मल थिंग्स लाइक ग्रोसरी आइटम्स, ठीक है, अगर ग्रोसरी आइटम्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आपकी इनकम उसी लेवल पे है, यू विल फील पुअरर कि आप भैया हमारा जो पॉकेट का जो बजट था वो डिस्टर्ब होने वाला है, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट नॉट वेल्थियर पुअरर, ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो ऑप्शन ए एंड 2 मींस ऑप्शन 1 एंड 2 मींस ऑप्शन ए शुड बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है दोस्तों, अंडरस्टूड। तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है, इफ यू एबल टू डू सो यू आर इन अ राइट पाथ, ठीक है। आप आसानी से प्रैक्टिस कीजिए, आई विल ऐड मोर प्रैक्टिस, मोर क्वेश्चन इन आवर प्रैक्टिस सेशन ऑल्सो, ठीक है। सो इनकरेक्ट इनकम इफेक्ट स्टेट दैट एज प्राइस राइज कंज्यूमर फील पुअरर, ठीक है, नॉट वेल्थियर एंड रिड्यूस द कंजम्पशन, ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि हमारी जो इनकम है दैट इज लिमिटेड, ठीक है, वी हैव स्केयर रिसोर्सेज। नेक्स्ट वन, which of the following statement about market demand and law of diminishing marginal utility are not correct, ठीक है। तो पहले तो law of marginal law of diminishing marginal utility, ठीक है, दैट इज ये क्या बोलता है आपका कि मतलब यूटिलिटी इज लाइक काइंड ऑफ आउटकम, ठीक है। लेट्स से हमने एक रोटी खाया, ठीक है, एक रोटी खाया तो योर अगर हम इसको यूटिलिटी को लेके चलें, लेट्स से इट वाज 10, ठीक है। दूसरी रोटी हमने खाई तो योर यूटिलिटी बिकम 9, तीसरी हमने खाई इट बिकम 7, ठीक है। तो क्या हो रहा है आपका कंजम्पशन, जैसे जितना हम ज्यादा करते जाएंगे हमारी भूख का लेवल है, ठीक है, जैसे आर भूख का लेवल इज लेट्स से 30, तो 30 में से क्या हो रहा है, पहली रोटी में हमें सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी, सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलेगी, ठीक है, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल, दूसरा में थोड़ा सा कम, तीसरे में कम, इस तरीके से ये आपका रहता है, ठीक है। तो व्हेन वी कंज्यूम वन एडिशनल यूनिट तो उसका जो आउटकम हमें आपका मिल रहा होता है दैट इज आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग मतलब धीरे धीरे वो क्या हो रहा है आपका कम हो रहा है, ठीक है, ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। सो दिस इज द वन, सो लॉ ऑफ डिमांड वी ऑल नो, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। मार्केट डिमांड इज obtained by summing the quantity demanded by all individual at each price level, ठीक है। सो ये आपका ओवरऑल मार्केट का जो है दिस इज 100% ट्रू, ठीक है। सो मार्केट डिमांड इज obtained by summing the quantity demanded by all individual at market level, सो दिस इज राइट आपका, ठीक है, उसके हिसाब से आपका चीजें होंगी, ठीक है, प्राइस लेवल पे 100% ट्रू। The market demand curve sloped downward upward, द मार्केट डिमांड कर्व स्लोप अपवर्ड लिखा है, मतलब डिमांड कम हो रही है मार्केट में, अपवर्ड होने का मतलब डिमांड कम हो रही है, ठीक है। टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एज वेल एज इनकम इफेक्ट, नो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। देखो ये क्या होगा आपका कंबाइंड इफेक्ट में ये गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। सो अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब सब्स्टिट्यूट गेट गुड्स आपका जैसे मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स आपके महंगे हैं या आपके इनकम एफर्ट्स योर इनकम इज इंक्रीजिंग, तो इट विल लीड टू द डाउनवर्ड नॉट अपवर्ड, ठीक है। तो द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इट शुड बी आपका डाउनवर्ड, ठीक है। सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग।
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ईच एडिशनल यूनिट कंज्यूम प्रोवाइड मोर सेटिस्फेक्शन। ये क्या बोला है? मोर सेटिस्फेक्शन। लग रहा है? नहीं लग रहा है। ठीक है, एक रोटी खा रहे हैं तो 10 यूटिलिटी मिला था, दो में आपका दूसरे में 9 मिला था। इट रिड्यूस, डिमिनिश हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, इट शुड बी आपका लेस सेटिस्फेक्शन देन द प्रीवियस वन। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ठीक है, तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ओनली वन। अच्छा व्हाट वी, अच्छा ओके, वी हैव टू फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो क्या होगा आंसर आपका? 2 and 3। 2 and 3 मतलब आपका ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन। अंडरस्टूड गाइस? प्यार से, आराम, धीरे धीरे से समझिए। मेक योर ओन लॉजिक, पिक अप पेन पेपर, वहां पे थोड़ा सा ड्रॉ करो। एक बार ड्रॉ करके अंडरस्टैंडिंग बना लोगे ना, उसके बाद कुछ भी देते हो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, so incorrect. The demand curve slope downward because lower price attract new buyers, ठीक है, allowing existing user to purchase more, income effect, ठीक है, and substitution. Then आपका ये दो हमने कहाँ पे पढ़े थे? हाँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे हमने डिस्कस किया था। ये देखो, इनकम इफेक्ट आपका, और आपका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कहाँ पे था? दिस इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट आपका। ठीक है, तो इस तरीके से इनको आपको अप्लाई करना है। ठीक है, the another one is according to law of diminishing marginal utility, each additional unit provide less satisfaction than the previous one. As I gave you an example of like first bread, which gave us a utility of satisfaction of 10 unit. Second bread gave us 9. थर्ड वन इज 7। एक बार ऐसा होगा 0 पे आ जाएगा जब आपकी भूख खत्म हो जाएगी। ठीक है, दैट इज द वन, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। Which of the following statement about factor influencing market demand are correct? ठीक है, मार्केट डिमांड मतलब डिमांड्स फॉर अ गुड्स एंड सर्विस, सिंपल। ठीक है, उसी लॉजिक में डिमांड के लॉ के हिसाब से। ठीक है, an increase in consumer average income generally lead to higher demand for goods even the prices remain unchanged. 100% true। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर। मतलब अगर आपकी इनकम बढ़ेगी ऑब्वियसली यू विल इंक्रीज द कंजम्पशन, और यू विल फॉर कंजम्पशन यू विल मेक द डिमांड। ठीक है, द डिमांड फॉर गुड्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉपुलेशन साइज ऑफ मार्केट। नो, इट इज लिंक विद द पॉपुलेशन ऑल्सो। पॉपुलेशन इज वन अनदर फैक्टर। इफ वील हैव मोर पॉपुलेशन, ठीक है, जैसे इंडिया को, इंडियन मार्केट पे इसलिए डेवलप्ड नेशंस आपकी अपनी पूरी नजर रखते हैं बिकॉज वी हैव अ लाइक वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन बेस। ठीक है, पॉपुलेशन है तो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं ऑब्वियसली दे विल मेक द डिमांड। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, स्टेटमेंट 2, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, इट इज लिंक विद द पॉपुलेशन साइज ऑल्सो। इफ पॉपुलेशन विल इंक्रीज, अगर ज्यादा पॉपुलेशन होगी दे विल मेक ज्यादा डिमांड, दैट इज द वन। ठीक है, the price and availability of substitute goods significantly affect the demand for a commodity. Yes, obviously substitute good आपका जो effect होगा। ठीक है, cultural, historical and psychological factor can influence consumer taste and preferences, definitely। ठीक है, तो हमारा जो कल्चर है, हमारा जो हिस्टोरी है, या हमारा जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है, दे ऑल्सो अफेक्ट और दे ऑल्सो become a reason to make demand for a specific commodity। ठीक है, so through if external factor like income, population, consumer preferences change, the demand curve remain unchanged। No, इनके साथ साथ आपका डिमांड कर्व विल आल्सो चेंज। ठीक है, सो दिस इज आल्सो रॉन्ग। ठीक है, तो क्या है आपका करेक्ट आंसर? व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट करेक्ट, दैट मींस 1 3 4 1 3 4। ठीक है, 1 3 4 1 3 4 1 2 3 2 नो, ये ऑप्शन गलत है 100% बिकॉज आई एम श्योर अबाउट दिस वन। वी हैव लाइक जो हमने अभी पढ़ा वही हमने इस पर अप्लाई किया। ठीक है, लेट्स चेक दिस वन। ठीक है, सी आपका सी 1 2 3 4 नहीं, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, आपका 1 2 3, हाँ देखो यहाँ एक्सप्लेनेशन में सही लिखा है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में ये क्या गलत है? आपका सी में 2 भी लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज नॉट द वन। ठीक है, 2 इज रॉन्ग। ठीक है, 2 इज रॉन्ग, 2 इज रॉन्ग। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 इनकरेक्ट लिखा है ना। द पॉपुलेशन साइज अफेक्ट द मार्केट डिमांड, लार्जर द पॉपुलेशन जनरली हायर द डिमांड। ठीक है, तो व्हाट शुड बी योर, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, अगर हम इसको कर दें 1 3 4 देन इट इज राइट आंसर। ठीक है, सो जो एक्सप्लेनेशन हमने डिस्कस किया था दैट इज 100% ट्रू। ठीक है, so statement 2 is incorrect. Statement 5 was also incorrect। changes in external factor cause shift in demand का, तो दो ही स्टेटमेंट गलत थे आपका, कौन सा? सेकंड एंड फिफ्थ वन। ठीक है, रेस्ट ऑल आर करेक्ट।
तो इस तरीके से आप कहेंगे एंड इट इज फॉर 2 मार्क्स 100% गाइस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर मिलेंगे तो 2 मार्क्स के लिए मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, which of the following statement shift in demand and expectations to a law of demand are correct, ठीक है। shift in demand curve, so वो आपका राइट वर्ड हो या आपका लेफ्ट वर्ड हो, ठीक है। एंड द एक्सपेक्टेशंस टू द डिमांड कर्व, ठीक है। मतलब आपका शिफ्ट इन डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो उसका लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड मूवमेंट्स क्या हो रहे हैं डिमांड कर्व के ऊपर, ठीक है। और शिफ्ट इन डिमांड अकर व्हेन factor other than price of goods influence the quantity demanded, ठीक है। A shift in demand occurs when factor other than price of goods, no, price आपका major factor है, ठीक है। So this is the one, ठीक है। So a shift in demand occurs when factor other than price of goods influence the quantity demanded, ठीक है। About shift in demand and expectations to the law of demand, okay. An increase in average income can lead to a rightward in the demand curve of for automobile, 100% true. This we will consider again, ठीक है। Veblen goods follow, they do not follow, ठीक है, follow the demand curve, ठीक है। जैसे होता है ना जो luxury items होते हैं, they do not follow the demand curve. Reason क्या होता है, मतलब people, वो people sentiments पे चलते हैं, ठीक है। तो लोग क्या होता है आपका दिखावे में होते हैं, ठीक है। सो दे हैव टू डू दैट सोचलाबाजी, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है जितना ज्यादा महंगा सामान हम खरीदेंगे तो वो उतना ज्यादा उनकी फेम को बढ़ाता है, दैट इज समथिंग लिंक विद दैट वन, लॉ ऑफ डिमांड वहां पे काम नहीं करता है, ठीक है। स्ट्रिक्टली एंड experience reduced demand when prices increase, no, this is wrong. Giffen goods are inferior goods that see an increase in demand when the prices rise, ठीक है। तो जैसे आपका ये जो नेसेसरी गुड्स आपके होते हैं, जैसे मैंने आपको सॉल्ट का एग्जांपल दिया, ठीक है। तो गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, दे वर्क, दे एक्ट लाइक द बेबलिन गुड्स आल्सो, ठीक है। बेबलिन गुड्स भी आपका गिफन गुड्स के अंदर कैटेगरी में आ सकते हैं, ठीक है। So increase in demand when prices of those particular commodities or services rise. This is true, ठीक है। Necessary goods and services do not follow the law of demand because people continue to purchase the regardless of prices change, again 100% true। necessary goods like जैसे आप सॉल्ट ले सकते हैं, आप राइस ले सकते हैं, जो खाने पीने की चीजें आपकी रोजमर्रा की चीजें होती हैं वो, ठीक है। Changes in income level can lead to expectations in the law of demand affecting consumer purchasing behaviors. This is true, ठीक है। तो हमें true आपका ढूंढना था, that means आपका ऑप्शन ए इज ऑल्सो करेक्ट, दैट मीन्स जो ऑप्शन से मैं इसको इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ, ठीक है। 1 2 4 5 6 1 2 1 2 4 5 6 अगर डी आपका इसका आंसर है तो ठीक है, यस, हाँ, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन क्यों करेक्ट है एक बार देख लेते हैं। Shift in demand happen when factor other than price influence the quantity demanded, ठीक है। This include change in income preference, external income, ठीक है। अच्छा, ओके, दे हैव टेकन दिस पर्टिकुलर वन इन रेफरेंस की मतलब अपार्ट फ्रॉम प्राइस वी हैव अदर फैक्टर आल्सो हु कैन लीड टू इंक्रीज डिमांड फॉर अ कमोडिटी और डिमांड कर्व को आपका शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। दैट्स व्हाई दे हैव गिवन दिस पर्टिकुलर वन, राइट, ठीक है। So, matlab, price is not the only factor. The outcome of this one is price is not the only factor. We have other factor also like taste and preferences और आपका इसके अलावा आपका इनकम लेवल, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट या अदर्स, सो दे आल्सो कम्स अंडर दिस, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस इज राइट। सो 1 2 4 5 6 दैट मींस ऑप्शन डी इज द राइट। ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन 3 आपका, ठीक है। बाकी हमने सब डिस्कस किए हैं। व्हेन एवरेज इनकम इंक्रीज कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय मोर गुड्स एंड ऑल, ठीक है। तो दे विल मेक हायर डिमांड्स। वेबलिन गुड्स सॉरी So Babylon goods such as luxury brands do not follow the law of demand. Instead, their demand rise as their price increase because they are seen as status symbol. जैसे iPhone के केस में आपका होता है sorry. Giffen goods, unlike normal goods, show a rise in demand when their prices increase. These are typically inferior goods that low income consumers rely on, ठीक है। जैसे आपका स्टेपल फूड्स है,
when their prices rise, people reduce consumption of more expensive substitute and they shift toward these particular goods. ठीक है. Necessary goods आपका जैसे salt का example थे others. Government often intervenes to keep their prices stable to protect consumers. Changes in income, if there will be changes in income, that is income effect, there will be impact on the quantity demanded. ठीक है. अगर income increase होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड विल ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो आपका वो भी आपका डिक्रीज होगा. सो दिस इज द वन. वेरी नाइस क्वेश्चन गाइस. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ वी विल बी एंटरिंग इनटू सप्लाई साइड. ठीक है. सो सप्लाई कर्व पे आते हैं आपका. देन वी विल प्रैक्टिस देन इक्विलिब्रियम. देन वी विल प्रैक्टिस मिक्स क्वेश्चन. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सप्लाई शेड्यूल आर करेक्ट. नाउ सप्लाई को आपको स्टडी करना है विद द हेल्प ऑफ like you have to assume you are a manufacturer of a goods. ठीक है. आप एक सेलर हो इस प्रोडक्ट के. ठीक है. सो लाइक आप कहाँ पे ज्यादा बेचना पसंद करोगे. ठीक है. सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है आपका. दिस लाइक ये आपका कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है. ठीक है. सो मतलब आप जितने मतलब लेट्स से दिस इज 100 रुपीज. तो 100 रुपीज पे यू वांट टू सेल मैक्सिमम. ठीक है. आप 100 पे मैक्सिमम सेल करना चाहेंगे. This is suppose that आपका 30, so you want to sell minimum in this one. ठीक है. As a supplier, what will be your psychology? I want to sell maximum at highest price. ठीक है. तो that is the one. तो जैसे 100 रुपीज है, so we are selling maximum. If it is 30 रुपीज, we are selling minimum. ठीक है. अगर ये 50 रुपीज है, so let's say we are selling this much of quantity. ठीक है. So कहीं ना कहीं आपका सप्लायर साइड से या जो मैन्युफैक्चरर या जो प्रोड्यूसर्स आपके हैं, you have to take this particular one from the producer side. ठीक है. So this is price and this is quantity. ठीक है. So at higher price we want to sell maximum quantity, at lower price we want to sell minimum quantity. ठीक है. So which of the following statement about supply schedule are correct. The supply schedule shows relationship between market price of a goods and quantity supply. ठीक है. Market price of goods and quantity supply. ठीक है. So at 100 we want to sell 100, at 30 we want to sell 10 only. ठीक है. So this is the one. First statement is true. An increase in price of goods lead to an increase in quantity supplied. So that this is also true. ठीक है. तो अगर आपका let's say earlier the quantity the price was 30, we were selling 10 unit. Now the quantity demanded is 100, so we are like we have increased our price also. So that is the one thing. The supply curve for goods is downward sloping. No, it is आपका upward sloping. ठीक है. This is supply curve. This is upward sloping. ठीक है. You can see this sign. It is moving to the upwards. ठीक है. It is not downward. ठीक है. Law of demand curve is downward sloping, right? Indicating that higher prices lead to lower supply. No, higher prices lead to higher prices. ठीक है. So this is upward sloping and this. So this make this a statement wrong. That means option A and 2 are correct. ठीक है. 1 and 2 means option A is correct. ठीक है. So incorrect because supply curve is upward sloping, meaning higher price lead to higher supply, not the lower one. Understood? ठीक है. बहुत आसानी से. अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में डिकोड करते हैं. सो व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई. ठीक है. और आपका सप्लाई शेड्यूल. ठीक है. सो अ सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबल दैट शोज क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज that producer are willing to sell at various price during the specific period. They want to sell more goods at higher price और आपका if prices decrease they'll sell the less item. ठीक है. Law of supply. As the prices of goods or services increase, as the prices of goods and services increase, quantity supplied increase और vice versa. ठीक है. तो हम लोग जो सप्लाई है वो भी क्या करेंगे आपका इंक्रीज करेंगे. सो वी कैन टेक मैक्सिमम बेनिफिट और मॉनेटरी बेनिफिट फ्रॉम द मार्केट इटसेल्फ. सो दिस इज द वन. ठीक है. तो जैसे you can see this. So the earlier the prices was 100. ठीक है. We were supplying. This is your supply. ठीक है. Quantity supply was 8. The prices become 500. So quantity supplies is 18. ठीक है. So आपका this was 100 and we are moving in this particular direction. So this is law of supply. कि अगर prices बढ़ेंगे so we will supply more goods. ठीक है. As a supplier
वी वांट टू सेल आर प्राइसेस, आर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट मैक्स प्राइस लेवल, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए रेडी होंगे, वी विल सेल यू मोर एंड मोर गुड्स, ठीक है, सिंपल सा। अगर आप प्राइसेस कम करोगे तो वी विल ऑल्सो डिक्रीज द सप्लाई, ठीक है। आप मैन्युफैक्चरिंग पर सोचिए कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, अगर वो आपका उसको प्राइसेस ज्यादा मिल रहे हैं, सो दे विल मैन्युफैक्चर मोर एंड मोर गुड्स, दैट मींस दे विल इंक्रीज द सप्लाई, ठीक है। एंड इफ दे विल नॉट गेट द प्राइस, आपका प्राइस कम हो रहे हैं, तो दे विल डिक्रीज द सप्लाई इटसेल्फ। सो दैट इज द रिलेशनशिप और दैट जनरली पार्ट ऑफ योर लॉ ऑफ सप्लाई, अंडरस्टूड। तो बेसिक आपका, ठीक है। सो नाउ आपका द पॉइंटर्स, ठीक है, फोर्सेस बिहाइंड द सप्लाई कर्व्स, ठीक है। सो सप्लाई कर्व इन इकोनॉमिक्स इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड्स, अगर प्राइस ऑफ गुड्स विल हाई एंड द क्वांटिटी सप्लाइड विल बी हाई, ठीक है, सिंपल सा। सो वेरियस फैक्टर्स और फोर्सेस व्हिच इन्फ्लुएंस द पोजीशन एंड स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो प्राइसेस ऑफ गुड्स आपका, ठीक है, इफ प्राइसेस ऑफ गुड्स विल हाई, सो दिस इज प्राइस, तो क्वांटिटी सप्लाई विल बी हाई, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, इफ योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल लो, ठीक है, हम हमारा मतलब कोई भी ऐसे फैक्टर, लेट्स से वी आर मैन्युफैक्चरिंग दिस मार्कर, अर्लियर वी वर मैन्युफैक्चरिंग मैन्युअली, ठीक है, हमारा एक का कॉस्ट था कितना आपका, लेट्स से 50 रुपीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नाउ वी अडॉप्टेड वन टेक्नोलॉजी एंड जिसकी वजह से आर कॉस्ट केम डाउन टू 30 रुपीज, तो 20 रुपीज का बफर आपका बच रहा है, ठीक है। सो अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी लो, ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, बढ़ेगा, तो उससे हम अपनी क्वांटिटी सप्लाइड को भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आपका सेम, सब्सटीट्यूट एंड योर आपका सब्सटीट्यूट एज वेल एज द अनदर वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं, दैट विल ऑल्सो इफेक्ट, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये आपका लॉ ऑफ डिमांड में भी था। नेचुरल इवेंट्स एंड कंडीशंस आपका, ठीक है, कि वहां पे सप्लाई कितनी है, ठीक है। इफ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ मोनोपोली, तो आप अपने हिसाब से चीजें करोगे, ठीक है। इफ यू हैव अ परफेक्ट कंपटीशन, तो उसके हिसाब से चीजें आपकी होंगी, ठीक है। Alright, so what is the first question? Which of the following statement about market supply is are correct? ठीक है, so market supply के संबंध में कौन सा correct है? So technological advancement reduce production cost and increase the supply, बिल्कुल सही, ठीक है। As I gave you example, जैसे marker, earlier the production cost was 50 rupees, we adopted new technology and cost came down to 30 rupees, ठीक है। So अब अगर आप प्रोडक्ट को कम उसमें बना पा रहे हो, ठीक है, so you will be able to sell that particular product at lower price also, ठीक है, so that is the one. An increase in input price such as labor or energy lead to a higher supply in the market, no, ठीक है, ये आपका क्या होगा, this will, मतलब इसका रिवर्स केस है, ठीक है, this is wrong. Government policies such as taxes regulation can impact the total supply of goods, बिल्कुल, अगर ये फेवर में होंगे तो it will increase the supply, अगर अगेंस्ट होंगे they will be decrease the supply, ठीक है। So 1 and 3 आपका option C will be right answer for this particular one. Statement 2 was incorrect because an increase in input price rise our production cost leading to lower supply, not the higher one, right? So this is the one. Next one, guys, if a new technology reduce the labor required to manufacture automobiles, what is likely impact on the supply curves, ठीक है। So supply curve, the supply curve shift to the left unchanged, सप्लाई का राइट, हाँ, इट विल मूव टू द राइट आपका, ठीक है। कैसे मूव करेगा, देखो क्या हो रहा है आपका, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, मैन्युफैक्चर ऑटोमोबाइल, सो इफ अ न्यू टेक्नोलॉजी रिड्यूस द लेबर कॉस्ट, ठीक है, सो दे विल बी एबल टू सेल मोर प्रोडक्ट एट दिस, so this will supply curve will move, right? So option C will be right answer for this particular one, ठीक है। So a new technology reduce the labor requirements, lower production, so lower cost make more profitable for firm to produce automobiles at every price, so leading to an increase in supply. This result in a rightward shift in this supply curve, so ठीक है। तो अगर lower cost पे हो रही है, जैसे as I gave you an example of this marker, कि पहले we were manufacturing at 50, जैसे कैसे आप एग्जांपल ले लो, ठीक है। सो जैसे पहले आपका cost was 50, we were selling it at 70, ठीक है। Then cost came down to, with after adoption of technology, it came down to 30. So now
आर प्रॉफिट, अब हम इसको यहीं पे बेच रहे हैं, 70 पे ही बेच रहे हैं, ठीक है। तो पहले कितना था, 20 का मार्जिन था, नाउ यू हैव मार्जिन ऑफ 40, ठीक है। तो आप चाहोगे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बेचना, बिकॉज यू आर गेटिंग मोर बेनिफिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इटसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट वन, which of the following condition must true for an equilibrium price to a stable, ठीक है। equilibrium क्या होता है बेसिकली, it is where आपका demand and supply curve break each other, ठीक है। जैसे this is your demand curve, ठीक है, and this is your supply curve, ठीक है। basically based on equilibrium price we decide the market prices, ठीक है। ये जो equilibrium है, ठीक है, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये आपका मार्केट प्राइस होगा। मतलब बायर इज विलिंग टू बाय, जो आपकी मतलब इस प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी है, ठीक है। बायर इज रेडी टू परचेज दैट पर्टिकुलर गुड इन सर्विस एट दिस प्राइस, एंड सेलर इज रेडी टू सेल एट दिस प्राइस, सो दिस इज योर मार्केट प्राइस, ठीक है। So where buyer and seller meet with this, ठीक है। Let's say this is price is supposed at 50 and quantity demanded is supposed at 50. So this is our perfect market condition where basically both the parties they are ready to buy or sell goods and services. So this is called equilibrium, ठीक है। If now the question is not only about this, ठीक है, थोड़ा सा equilibriums, what is equilibriums, this you know with this particular example. So this is a point where आपका बायर एंड सेलर दे आर मीटिंग देयर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। बायर आपका उस प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी है, ठीक है, एंड सेलर इज रेडी टू सेल ऑन दैट पर्टिकुलर प्राइस, दैट प्राइस इज जनरली नोन एज इक्विलिब्रियम्स, एंड मार्केट इक्विलिब्रियम्स आपका कुछ इस तरीके से ही फॉर्म होता है, ठीक है। सो नाउ इफ क्वेश्चन इज फॉलोइंग कंडीशन मस्ट ट्रू अबाउट द इक्विलिब्रियम प्राइस टू बी स्टेबल, ठीक है। अब हमें अगर इसको स्टेबल रखना है तो उसके रिगार्डिंग कंडीशंस हैव गिवन, ठीक है। इफ द प्राइस इज इक्विलिब्रियम्स और शॉर्टेज शुड अकर, नहीं, अगर ऐसा है देयर विल बी नो शॉर्टेज, ठीक है। इफ प्राइस इज बिलो द इक्विलिब्रियम्स और सरप्लस, नो, ये अपोजिट होगा आपका, ठीक है। इफ प्राइस इज अबव इट इज आपका सरप्लस, बिलो 10, ठीक है। इफ प्राइस इज अबव द इक्विलिब्रियम सरप्लस शुड बी पुश प्राइसेस डाउन, ठीक है। अगर आप कहा, दिस सीम्स वेरी फर्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इस इफ प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम, ठीक है, अगर प्राइस आपका इक्विलिब्रियम से ऊपर है, लेट्स से कहां गया, लेट्स से इट इज 55, ठीक है। सो सरप्लस शुड पुश प्राइसेस डाउन, ठीक है। सो सरप्लस विल पुश इट डाउन, एंड इफ प्राइस इज बिलो इक्विलिब्रियम, ठीक है, शॉर्टेज विल पुश दैट पर्टिकुलर, सप्लाई शॉर्टेज विल पुश दैट पर्टिकुलर वन, 100% ट्रू, ठीक है। आगे जाने की जरूरत नहीं है आपको, so C will be right answer for this one, ठीक है। और surplus at price because seller to reduce price, ठीक है, while shortage at low price because buyer to bid up prices, ठीक है। These self correcting forces ensure market stability. तो यही मतलब these are the point, जो surplus है या आपका shortage है, they itself deciding the market price. जैसे होता ना, like अगर आपने कभी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग किया होगा, ठीक है, तो देर आर नंबर ऑफ बायर्स, देर आर नंबर ऑफ सेलर्स फॉर अ सिक्योरिटी, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, यू इंक्रीज योर बिड बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग दैट प्राइस, और कई बार क्या होता है, आपका जैसे अगर ज्यादा डिमांड है तो आपका जो बायर्स है दे विल इंक्रीज देयर बिड, और अगर ज्यादा सप्लाई है सेलर विल डिक्रीज देयर बिड, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू दैट, ठीक है। इफ यू कंपेयर विद द स्टॉक मार्केट थिंग्स एंड ऑल, यू विल इजीली अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। So what is equilibrium? ठीक है, this we have discussed, ठीक है। So equilibrium and prices, price and quantity, ठीक है। So this is your supply this is your supply curve and this is your demand curve. The point they meet with each others, that is generally known as equilibrium, and this is the price where we are settling our or executing our trades and all. All right. So this is the one. I hope this is clear to all of you guys. So equilibrium of supply and demand, equilibrium in the context of supply and demand refer to state where quantity of a good or services that buyer willing and able to purchase equal the quantity of sellers willing and able to sell, ठीक है। तो जहां पे buyer is ready to buy that particular commodity at that price and seller is ready to sell that particular price, ठीक है। तो जहां पे डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं, that is generally known as equilibrium, ठीक है। तो जैसे as I gave you an example, this is 50 and this is 50, ठीक है। तो buyer is ready to pay 50 rupees for 50 quantity and seller is ready to pay
ready to sell 50 quantity at this particular price. So that price is जब मार्केट प्राइस आपका डिसाइड होता है दैट इज डाउन. दिस इज सरप्लस आपका, ठीक है, और दिस इज आपका शॉर्टेज. जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे आपका एक्सप्लेन भी किया गया, ठीक है. तो सरप्लस, ये सरप्लस साइड है आपका, ये आपका शॉर्टेज साइड है, ठीक है. सो करेक्शन विल हैपन, ठीक है, एंड इट विल कम टू दिस वन, ठीक है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि लेट्स से इफ देयर इज समथिंग, जैसे स्टॉक मार्केट का आई गिव यू एन एग्जांपल अबाउट सम XYZ सिक्योरिटी, ठीक है. सो लेट्स से इफ सरप्लस इज 55, so he'll reduce this price to here, ठीक है, he'll come to आपका 50 and let's say it was at 47, उसकी जो bid थी he'll also increase, तो जहां पे वो मिलेंगे that is generally known as equilibriums. Understood guys? Alright, चलो. So at this point market is considered to be balanced and there is no tendency for price to changes, ठीक है. So equilibrium price, the price at which the quantity demanded equal to quantity supplied. Equilibrium quantity is quantity that both supplied and demanded are at the equilibrium price. वो 50 rupees वाला जो पॉइंट आपका था, ठीक है. चलो नेक्स्ट वन गाइज. A city experience extreme rainfall and flooding, damaging a wheat crop in nearly farming areas. As a result, the cost of wheat rise significantly, affecting the production of bread. Bakeries find it more expensive to produce bread and reduce their supply. Meanwhile, the local government announced a financial aid program increasing the disposable income of families in the affected area. This lead to an increase in demand for essential goods, including bread. Okay, so now question is, based on the given scenario, what will likely happen in this bread market? The price of bread will increase due to both lower supply and higher demand. ठीक है, पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है. Why it is correct? देखो क्या होगा. The price of bread will remain unchanged. The price, हाँ, ऑप्शन ए ओनली विल बी राइट आंसर, ठीक है. आप देख सकते हैं ये, ठीक है. क्यों पहला ही ऑप्शन करेक्ट है? देखो क्या हुआ है, एक तो आपका सप्लाई कम हुई है, ठीक है, ड्यू टू दिस नेचुरल कैलेमिटी. उधर से आपका गवर्नमेंट ने क्या किया है, दे हैव इंक्रीज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स. तो उससे आपका तो क्या होगा, इवेंचुअली इट विल लीड टू द प्राइस ऑफ ब्रेड विल इंक्रीज ड्यू टू बोथ लोअर सप्लाई ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी एंड हायर डिमांड. हायर डिमांड क्यों है कि लोगों को आपका सब्सिडीज मिली है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, तो वो आपका दे डिमांड फॉर मोर एंड मोर, ठीक है. तो ऑप्शन ए. आप इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं ना तो इतने जल्दी आप प्रॉब्लम को पकड़ पाएंगे, ठीक है. द फ्लडिंग डैमेज व्हीट क्रॉप्स लीडिंग टू अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व. साइमल्टेनियसली द गवर्नमेंट एड प्रोग्राम्स इंक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है. आपका जो टैक्सेस वाली होती है उसको मतलब गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया, खत्म कर दिया सपोज दैट, ठीक है. लीडिंग टू अ राइटवर्ड डिमांड्स इन द डिमांड कर्व. तो दोनों ही आपका क्या कर रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग द प्राइस. सेम. सो बोथ दीज इफेक्ट पुट अपवर्ड प्रेशर ऑन द प्राइसेस ऑफ ब्रेड मेकिंग इट मोर एक्सपेंसिव, ठीक है. नेक्स्ट वन. Which of the following statement accurately describe the concept of demand schedule? तो demand schedule का concept कौन सा correct है, ठीक है. A demand schedule refer to a table that shows the quantity of a goods that consumer are willing to purchase at various price. Demand schedule की बात हो रही थी, ठीक है. तो demand schedule हमने क्या कैसे पढ़ा था, ऐसे, ठीक है. आपका डाउनवर्ड स्लोप रहेगा, ठीक है. सो अगर हमारा प्राइस यहाँ पे था तो क्वांटिटी डिमांडेड इज दिस. अगर हमारा प्राइस यहाँ पे है तो क्वांटिटी डिमांडेड इज दिस. दिस इज क्वांटिटी, दिस इज प्राइस, ठीक है. तो पहला ही ऑप्शन क्या है आपका, 100% ट्रू है, ठीक है. क्लियर है सबको. अगला. In economics, supply curve illustrate the relationship between the quantity of a goods that producers are willing to sell and its price. There are several factors that can affect the position and slope of supply curve. For instance, a technological advancement that lower production cost will typically shift it rightward. rightwards, ठीक है. rightward है कहीं पे आपका, move upwards, आपका rightwards, ठीक है. दूसरा आपका the supply curves leading to a more quantity supplied at each level, ठीक है. The government implement a regulation that market production
more cost, that make the production more costly, increase taxes and all, ठीक है. Supply curve will move to the leftward, ठीक है. तो ये आपका rightward और ये आपका leftward, ठीक है. तो rightward and leftward means आपका option C should be right answer for this one, ठीक है. Rightward and leftward, ठीक है. So आपका rightward and leftward. तो कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े हैं वो अगर क्लियर है, सो आप इनको इसी तरीके से आपका सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है. Which one of the following statement about demand schedule is incorrect? ठीक है, incorrect statement आपको find out करना है. A demand schedule represent the relationship between price and quantity demanded, correct? A downward movement along the demand schedule represent a decrease in demand, ठीक है. No, it is increase the demand, ठीक है, it is wrong, ठीक है. And upward movements along the demand schedule represent a decrease in the demand, ठीक है. Upward movements अगर close आ रहा है इधर की तरफ तो आपका decrease हो रही demand, true. A demand schedule can be represented graphically by demand curve, बिल्कुल सही, ठीक है. तो ऑप्शन बी आपका this is incorrect. You have to find out the incorrect statement. और downward movements means this, ठीक है. Along with the demand schedule represent decrease in demand. ये क्या कर रहा है आपका increase in demand. इसका मतलब है कि demand क्या हो रही है, increase हो रही है, not decrease आपका, ठीक है. So this is the one. So downwards means आपका increase in demand. Next one. Which of the following statement are correct in the context of the forces behind the demand curve, ठीक है. Forces or factors behind the demand curve. The demand curve shows the relationship between quantity of a goods that consumers are willing to buy at its prices, various prices, ठीक है. A change in the price of goods itself cause shift along the demand curve, ठीक है. A change in prices of goods itself cause a shift in demand curve, okay. No, this is wrong, ठीक है. A change in price of goods itself cause shift along with the demand. ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है. This is not necessary, ठीक है. कई बार आपका इसके expectations आपका गलत डायरेक्शन में भी जा सकता है. Factor other than price such as income preference cause shift in the demand curve, बिल्कुल सही, ठीक है. So one is right, two is incorrect, third one is right. An increase in price of goods always lead to a shift to a right of the demand curve. It is not always, ठीक है. So कुछ अपवाद भी हैं. तो 1 and 3 आपका 1 and 3 है ऑप्शन में, 1 and 2 1 and 3. So option C will be right answer for this particular one, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. What does demand schedule represent, ठीक है. So तो आसान है. The relationship between supply, no. The quantity of a product consumers are willing to purchase at various prices. B आपका correct answer है. Equilibrium of supply and demand is a state in which state in a market where quantity of a goods or service supplied equal the quantity demand at a particular price. That 50-50 wala case, 100 assertion is 100% true. Equilibrium price, the price at which supply equal demand, is always static and does not change in response to shift in supply or demand. This is incorrect, okay? This is not a static thing. If there will be some change in demand in supply, this will also change आपका, ठीक है. Because इसका जो base है, this is इसका underlying is आपका ये, ठीक है. तो this is right, this is wrong, ठीक है. A is true but R is false. So option A only will be right answer for this one. A is true, R is false. आपका false क्यों है? Because अगर डिमांड एंड सप्लाई में कोई चेंज होगा, इट विल इवेंचुअली इफेक्ट योर आपका द अदर साइड ऑल्सो, ठीक है. इक्विलिब्रियम्स के अंदर आपका चेंजेस होंगे, ठीक है. सो नाउ विल क्विकली समराइज दिस पर्टिकुलर वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट. आई होप आपको समझ में आया होगा चीज़ें, ठीक है. तो एक बार दोबारा से आप जैसे नोट्स के थ्रू आप एक्सप्लेनेशंस को पढ़ सकते हैं अदर्स, ठीक है. सो लेट्स समराइज दिस वन, ठीक है. There exists a definite relationship between market price of goods and a demanded quantity of that goods. Other things remaining constant. The relationship between price and quantity, what is called demand schedules, ठीक है. तो जिसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड का, ठीक है. लॉ सप्लाई आपका लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड्स, ठीक है. लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड्स, ठीक है. सो मतलब जो आपका स्लोप को सपोर्ट करते हैं. वाई आपका if prices are getting down, the quantity demanded is increasing, ठीक है. that is the one. When the price of commodity is rise
buyers tend to buy less. Similarly, when the price is आपका high, that is this. The market demand curve is founded by adding together the quantities demanded by all individuals in each price. ठीक है, so this is called market demand. ठीक है, सबके द्वारा अलग अलग prices पे क्या डिमांड किया गया, एवरेज इज योर मार्केट डिमांड. ठीक है, when there is a change in factors other than a goods own price which affect the quantity purchase, we call these changes shift in demand. Demand shift means the quantity demanded at each specific price increase compared to the earlier demand. Supply schedule आपका for a commodity shows the relationship between its market price and the amount for commodity the producers are willing to produce and sell other things held content. ठीक है, तो कितने प्राइस पे, this is supplier side, this is buyer side. ठीक है, when changes in factors other than a goods own price affect the quantity are supplied, it is generally known as shift in supply. ठीक है, जैसे shift in demand था वैसे shift in supply. ठीक है, जैसे आपका taste and preferences, consumer income level and all. ठीक है, market equilibrium comes at a price at which the quantity demanded equal to quantity supplied. 50-50 वाला केस जो हमारा बना था. ठीक है, the equilibrium price and quantity comes where the amount willingly supplied equal the amount willingly demanded. In a competitive market, this equilibrium is found at intersection of the supply and demand curve. ठीक है, जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं. ठीक है, there is no shortage or surplus at equilibrium price. ठीक है, तो ये हमने आपका प्रैक्टिस भी की, सारी चीजें हमने इस सेशन में सारे डिटेल में डिस्कस किए. When the element underlying demand or supply change, this lead to shift in demand or supply and change in market equilibrium also. This was our last question. I hope आपको याद होगा. ठीक है, तो जो assertion versus आपका reasons थे उनका हमने जो डिस्कशन किया था. ठीक है, कुछ आपके बुक के क्वेश्चन. डिमांड शेड्यूल आपका क्या करता है, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी. ठीक है, तो ऑप्शन बी. मार्केट डिमांड कर्व ओबे लॉ ऑफ स्लोपिंग, नो अपवर्ड. ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग आपका होगा. ठीक है, फोर्सेस बिहाइंड द डिमांड कर्व, एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर, एवरेज इनकम, कॉस्ट ऑफ नहीं सिर्फ दो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज समथिंग रिलेटेड टू लॉ ऑफ सप्लाई. ठीक है, सो ए एंड बी आपका. और डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व रिलेट क्वांटिटी डिमांडेड टू डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व रिलेट क्वांटिटी डिमांडेड टू आपका प्राइस के साथ. ठीक है, तो अगर प्राइस कम, मतलब अगर आपका क्या होगा, सिंपल सा डाउनवर्ड स्लोप का होगा, अगर प्राइस कम होंगे तो पीपल विल मेक मोर डिमांड्स. ठीक है, shift in supply means when changes in factor other than goods own price that quantity supplied. True, when changes in goods own affect the quantity supplied too. तो A and B आपका both हो जाएगा. ठीक है, the equilibrium price is known as market price. ठीक है, आपका market price है. ठीक है, forces behind the supply curve. ठीक है, कौन कौन से हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, आपका डी राइट आंसर होगा. सप्लाई कर्व रिलेट क्वांटिटी सप्लाइड टू प्राइस आपका. ठीक है, देन मार्केट इक्विलिब्रियम कम्स एट अ प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई. ठीक है, सो दैट मीन्स ऑप्शन बी आपका, एंड दिस इज इट. ठीक है, तो ये हमारा पूरा डिस्कशन अराउंड यूनिट नंबर 13. आई होप यू एंजॉय दिस पर्टिकुलर डिस्कशन. ठीक है, तो एक सेशन के अंदर हमने पूरा कवरेज आपका किया है. ठीक है, सो प्लीज गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ के थ्रू, थोड़ा सा एक आफ्टर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो जस्ट रिवाइज थ्रू द पीडीएफ ऑल्सो. ठीक है, सो पीडीएफ के थ्रू आप इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बार देखेंगे, मेक सम डायग्राम. ठीक है, while you prepare for this particular topic, diagram will help you to make your more better understanding. ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उससे आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी. ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही करेंगे. ठीक है, नाउ in our next session we will be discussing around the unit number 14 which is around your money and inflation. ठीक है, so money supply and inflation again very important unit. ठीक है, तो सारे वन बाय वन वी विल बी कवरिंग दिस पर्टिकुलर वन इन दिस वीक इटसेल्फ. ठीक है, मॉड्यूल बी आपका, देन विल
हैव लाइक पूरा प्रिपरेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी रिलीज दोज समरी वीडियोस, ठीक है। तो अगर आप में से कोई लेट ज्वाइन किया है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन वॉच दैट दोज वन शॉट वीडियोस, ठीक है। एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगे चारों मॉड्यूल के आपका। द फोर्थ वन आई लाइक ये जो आपका मॉड्यूल बी है, दिस आई अपलोड एट द एंड, ठीक है। एक बार ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद व्हाट यू कैन डू, अगर आप इनको पहले कॉन्सेप्ट समरी देख लीजिए, देन इनको आपका देख लीजिए, ठीक है। देन यू कैन गो फॉर द मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट, unit wise mock test as well as full length mock test. All right guys, so this is it from my side. Thank you for joining this session, thank you for watching this session. Do share your feedbacks, and if you like this session, please do share with others also. All right, so this is it. Bye bye, take care all. Have a nice day, and I'll see you tomorrow at same time with our unit number 14. Bye bye, take care all. Thank you.